Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mrs. Rizwana Zia. I welcome you in the online classes of TPS Sahiwal. Students, as you know that we are studying chapter number 3, that is about matrices and determinants. Today we will solve question number 5 to 11 of exercise 3.3. Students, in previous lecture we learned about minor of an element, cofactor of an element of a matrix or a determinant, expansion of a determinant using its minor and cofactor, and properties of determinants. Now students, let us see question number 5. Without expansion, verify that determinant of alpha, beta plus gamma 1, beta, gamma plus alpha 1, gamma, alpha plus beta 1 is equal to 0. Now students, I am going to take its left hand side, that is alpha, beta plus gamma 1, beta, gamma plus alpha 1, gamma, alpha plus beta 1 का determinant. ठीक है. Now students, I am going to add column 1 and column 2. And when we say we are going to add column 1 and column 2 or any two rows or any two columns, then we add the corresponding entries of those columns or rows. So here we add first entry of first column in the first entry of second column, second entry of first column in the second entry of second column, and third entry of first column in third entry of second column. आइए ऐड करते हैं इनको. We get अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. सेकंड देखिए बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फा, इसे हम अरेंज कर लेंगे. इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. थर्ड देखिए गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको भी हम अरेंज कर लेंगे. अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. और स्टूडेंट्स आप सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिख लेंगे. और अब अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखें तो इसमें तीनों एंट्रीज में से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले सकते हैं. सो टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1, वी गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 1 1 1, beta plus gamma, gamma plus alpha, alpha plus beta 1 1 1. Now since column 1 and column 3 are identical, so value of the determinant will be 0. You have read this property. If two columns or two rows are identical, then value of the determinant becomes 0. That is alpha plus beta plus gamma into 0 is equal to 0, which is right hand side. So we have proved this result without expansion. Now next part देखिए. 1 2 3 2 3 5 3x 6x 9x इनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू 0 है. और स्टूडेंट्स ये भी हमने विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई करना है. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्टूडेंट्स आप देखें थर्ड कॉलम 3x 6x 9x, जी बेटे विच वैल्यू कैन बी टेकन? यस 3x. देखिए 3x हम कॉमन लेंगे और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो है 1 2 3 2 3 5. और इसमें से स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम में से हमने 3x कॉमन ले लिया है, तो वो है जो कॉलम बच गया है वो बना है 1 2 3. एंड अगेन स्टूडेंट्स सिंस फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, so the value of the determinant is 0. That is 3x into 0 is equal to 0, and hence left hand side is equal to right hand side. थर्ड पार्ट देखिएगा. थर्ड पार्ट में डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 1 1, a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर, a ओवर बी सी, b ओवर सी ए, c ओवर ए बी.
We take left hand side of the given equation. Now students, I am going to multiply C3 by ABC. थर्ड कॉलम को स्टूडेंट्स हम ABC से मल्टीप्लाई करेंगे और जब भी हम डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बैलेंस करने के लिए डिटर्मिनेंट से बाहर डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/ABC इंटू, फिर हम ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। थर्ड कॉलम में हम ABC से हर एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि जब हमने थर्ड कॉलम की हर एंट्री को ABC से मल्टीप्लाई किया तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये सिंप्लीफाई होंगी। A/BC, स्टूडेंट्स के डिनोमिनेटर का BC इस वैल्यू BC से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद A मल्टीप्लाई बाय A, दैट इज A²। सिमिलरली इन सेकेंड एंट्री B/CA, CA will be cancelled by CA and second entry becomes B². Similarly, in third entry, AB will be cancelled by AB and we are left with C². देखिए ये डिटर्मिनेंट क्या बनता है जी, 1/ABC 1 A² B² C², A² B² C². Now students, since second and third column are identical, so value of the determinant is equal to 0 and hence left hand side is equal to right hand side. Next part देखिए, now we have determinant of A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A, A minus B, C minus A, A minus B, B minus C is equal to 0. सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों कॉलम्स को ऐड करने लगी हूँ और फर्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये हमने फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ लिख लिए हैं हमने और फर्स्ट कॉलम में देखें जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, A माइनस A विल बी कैंसल्ड, माइनस B प्लस B विल बी कैंसल्ड, माइनस C प्लस C विल बी कैंसल्ड एंड दिस एंट्री बिकम्स 0। सेकंड में भी देखिए एंट्री 0 हो जाएगी, B माइनस B विल बी कैंसल्ड, माइनस C प्लस C विल बी कैंसल्ड एंड माइनस A प्लस A विल बी कैंसल्ड। थर्ड देखिए C माइनस C विल बी कैंसल्ड, माइनस A प्लस A विल बी कैंसल्ड एंड माइनस B प्लस B विल बी कैंसल्ड। सो ऑल द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 0 and you know that by property of determinant, if all the entries of a row or a column are 0, then value of the determinant is 0 and hence this is right hand side. Next part देखते हैं। Next part में students determinant है आपके पास BC CA AB, 1/A 1/B 1/C ABC। जैसे हमने इसी तरह के एक पिछले पार्ट में हमने सॉल्व किया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी प्रोसीड करेंगे। हम सेकंड रो को ABC से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट से बाहर डिवाइड भी करते हैं, 1/ABC और फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी स्टूडेंट्स। सेकंड रो को आपने ABC से मल्टीप्लाई करना है, 1/ABC 1/A इंटू ABC, 1/B इंटू ABC, 1/C इंटू ABC और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी ABC। अब आप देखिए फिर ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगी, A विल बी कैंसल्ड बाय A, वी आर लेफ्ट विद BC, B विल बी कैंसल्ड बाय B, वी आर लेफ्ट विद AC एंड C विल बी कैंसल्ड बाय C, वी आर लेफ्ट विद AB। और अब आप देखें कि
second row and first row are identical. These two rows are identical, so the value of the determinant is 0 and we are at required result. Now students, सिक्स्थ पार्ट देखिए. सिक्स पार्ट में जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट है. स्टूडेंट्स, हम कोई भी साइड लेके रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं, बट अगेन आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन एल एल स्क्वेयर, एन एल एम एम स्क्वेयर, एल एम एन एन स्क्वेयर. स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 1 1 है. तो हम कोशिश करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड के फर्स्ट कॉलम की तीनों एंट्रीज़ को सेम बना लें. और देखिए हम सेम कैसे बना सकते हैं. यहाँ पे एम एन, एल इज़ मिसिंग, तो हम फर्स्ट रो को एल से मल्टीप्लाई कर लेंगे. एन एल, फर्स्ट एंट्री है एन एल, क्या मिसिंग है इसमें? एम. ठीक है, हम तीनों एंट्रीज़ को एल एम एन बनाएंगे. तो यहाँ पे एन एल है, एम इज़ मिसिंग, तो हम सेकेंड रो को एम से मल्टीप्लाई करेंगे. और थर्ड एंट्री में एन मिसिंग है. एल एम एन अगर हम बनाना चाहें तो एन मिसिंग है, इसलिए हम थर्ड एंट्री को एन से मल्टीप्लाई करेंगे और अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे. जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग R1 by L, R2 by M एंड R3 by N. और जब हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम डिटर्मिनेंट के बाहर 1 over दैट वैल्यू लिखते हैं, दैट इज़ 1 over L M N. और R1 becomes L M N L square L cube. सेकेंड रो L M N M square M cube. थर्ड रो L M N N square N cube. आपने देखा कि फर्स्ट कॉलम की तमाम एंट्रीज सेम हो गई हैं. नाउ वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम C1. L M N हमने कॉमन ले लिया और एक L M N डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद था. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स. और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? 1 L square L cube, 1 M square M cube, 1 N square N cube, and this is required determinant on right hand side, and hence we have proved the result. Left hand side is equal to right hand side. सेवन्थ पार्ट देखिएगा. 2A 2B 2C, A plus B 2B B plus C, A plus C B plus C 2C. अब स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि हमने अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और फर्स्ट रॉ में अगर आप देखें तो 2A 2B 2C, 2 इज़ कॉमन, वी कैन टेक 2 कॉमन. Now students, taking 2 common from R1, we get A B C, A plus B 2B B plus C, A plus C B plus C 2C. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने ये दो ऑपरेशंस करने हैं, R2 minus R1 एंड R3 minus R1. R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें, A plus B minus A, 2B minus B and B plus C minus C. This is new R2. और इसी तरह से R3 फॉर्म करें, A plus C minus A, B plus C minus B and 2C minus C. And the result is 2 into ABC, BBB and CCC. Now students, you can see that we can take common B from R2 and C from R3. Taking common, we are left with 2BC and determinant is ABC 1 1 1 1 1 1. Now students, since R2 and R3 are identical, so the value of the determinant is 0. That is 2BC into 0 is equal to 0 and hence this is right hand side. Students, next part करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे.
if each entry of a row or a column of a square matrix consists of two terms, then its determinant can be written as sum of two determinants. अगर स्टूडेंट्स आपके पास किसी मैट्रिक्स की एक रो या कॉलम की हर एंट्री दो टर्म्स पर मुश्तमिल हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को आप देखिए A11 प्लस B11, A21 प्लस B21 एंड A31 प्लस B31। आपने देखा कि हर एंट्री में दो दो एंट्रीज़ हैं, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो उस डिटर्मिनेंट को हम एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। ये हमने B का डिटर्मिनेंट लिखा और स्टूडेंट्स इस B के डिटर्मिनेंट को हम एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। और वो हम कैसे लिखेंगे कि ये जो दो दो एंट्रीज़ हैं इसमें से पहली एंट्रीज़ के कॉलम को फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिख लें और सेकंड एंट्रीज़ को हम सेकंड डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे और C2 और C3 एज इट इज़ रहेंगे। दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 726 632 -351 is equal to 727 635 -35 -3 plus 72 -1 63 -3 -35 4 का डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखें तो फर्स्ट टू कॉलम्स तमाम डिटर्मिनेंट्स के सेम हैं। देखिए यहाँ पे ये दो कॉलम C1 C2, ये भी C1 C2 और ये भी C1 C2। अभी हमने पढ़ा कि हम किसी एक रो या कॉलम की एंट्रीज़ को एज सम लिखें तो फिर हम उसको टू डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, यहाँ पे फर्स्ट टू कॉलम्स तो सेम हैं इसलिए इनको तो हमने कुछ नहीं करना। थर्ड कॉलम को हम देखेंगे क्या हम इसकी हर एंट्री को एज सम ऑफ टू एंट्रीज लिख सकते हैं। देखिए 6 को मैंने कन्वर्ट किया 7 -1 में। 7 -1 में क्यों कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे थर्ड कॉलम्स की एंट्रीज 7, फर्स्ट एंट्री 7 और -1 है एंड 7 -1 इज 6। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री लेते हैं 2 और उसको कन्वर्ट करते हैं हम 5 -3 में एंड 5 -3 स्टूडेंट्स अगेन 2 एंड नेक्स्ट एंट्री है 1 को हम कन्वर्ट करते हैं -3 + 4 में। -3 + 4 इज 1। आपने देखा कि हमने थर्ड कॉलम के एंट्रीज को एज सम ऑफ टू एंट्रीज लिख लिया और सिंस each entry of C3 consists of two terms, therefore two determinants are formed। ये देखिए फर्स्ट टू कॉलम्स तो एज इट इज़ हैं, थर्ड कॉलम की हेल्प से हमने टू डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। C1 C2 को एज इट इज़ लिखा और C3 में फर्स्ट एंट्रीज को मैंने पहले लिख लिया है 7 5 -3 7 5 -3 प्लस फिर नेक्स्ट एंट्रीज को देखिए -1 -3 4 -1 -3 4 C1 C2 एज इट इज़ लिख के और थर्ड हमने कॉलम बना लिया एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ राइट हैंड साइड। आपने देखा कि इतनी ह्यूज सी इक्वेशन को हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके कितनी आसानी से वेरीफाई किया। सो यही स्टूडेंट्स हमें फ़ायदा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का कि ये हमारे काम को आसान कर देती हैं और वर्किंग को छोटा कर देती हैं। 9th पार्ट देखिएगा -A 0C 0A -B B -C 0 इन सब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई R1 by B, R2 by C एंड R3 by A। और स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड भी करते हैं वैल्यूज़ को। हमने यहाँ पे लिखा 1/ABC। R1 को B से मल्टीप्लाई करें
minus a 0c, it becomes minus ab 0 bc. r2 को c से मल्टीप्लाई करें, ये r2 है, इसे c से मल्टीप्लाई करें, 0 ac माइनस bc. और r3 को स्टूडेंट्स a से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स ab माइनस ac एंड 0. नेक्स्ट बाय r1 प्लस r2 प्लस r3. r1 में आपने r2 और r3 को ऐड कर देना है. माइनस ए बी प्लस 0 प्लस ए बी. स्टूडेंट्स माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ 0. नेक्स्ट ऐड करें 0 ए सी माइनस ए सी. अगेन प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विथ 0. एंड थर्ड कॉलम में देखिएगा BC minus BC plus 0. BC minus BC will be cancelled. We are left with 0. And you can see that R1 is 0, means all the entries of R1 are 0. So value of the determinant is 0. And left hand side is equal to right hand side. Now students, question number 6 देखिए. Find the value of x if determinant of 31x minus 134 x10 is equal to minus 30. लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे. आपको पता है ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं. जी स्टूडेंट्स, इसको हम एक्सपेंड करने लगे हैं बाय r1 और r1 की फर्स्ट एंट्री है 3 को हम इसके माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे हम माइनर फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? 3 की रो और कॉलम को आप डिलीट कर दें और जो बाकी एंट्रीज बचेंगी उनको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें. देखिए 3 की रो है 31x और 3 माइनस 1x. इन्हें छोड़ दें, इन्हें डिलीट कर दें और बाकी हमारे पास क्या बचा 3 4 1 0. इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया. दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ 3 को हमने उसके माइनर से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट एंट्री है 1 को भी हम उसके माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 की रो और 1 के कॉलम को डिलीट कर दें. बाकी एंट्रीज क्या बची -1 x 4 0. ये हमने लिख लिया -1 x 4 0 का डिटर्मिनेंट. एंड लास्ट एंट्री है x के साथ भी इसके माइनर को लिख लें. x की रो और x के कॉलम को डिलीट करें. वी आर लेफ्ट विद -13 x1 का डिटर्मिनेंट. और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट एंट्री के साथ हमने पॉजिटिव साइन लिखा, सेकेंड एंट्री के साथ हमने नेगेटिव और थर्ड एंट्री के साथ हमने पॉजिटिव साइन लिखा. स्टूडेंट्स ये हमेशा आपने याद रखना है कि अगर आप फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें किसी डिटर्मिनेंट को तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म पॉजिटिव लिखेंगे, सेकंड के लिए आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे और थर्ड के लिए आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे. मींस ऑल्टरनेट साइन. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव. तो एंड दिस इज इक्वल टू -30. -30 ये राइट हैंड साइड का एज इट इज़ आ गया. इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स. और आपको पता है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर सेकंड डायगोनल की एंट्रीज के प्रोडक्ट को. देखिए 3 zeros are 0 माइनस 4 ones are 4. सो देखते हैं 3 इंटू 0 माइनस 4 -1 इंटू 0 माइनस 4x प्लस x इंटू -1 माइनस 3x इज इक्वल टू -30. सिंप्लीफाई किया -12 प्लस 4x माइनस x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 30 इज इक्वल टू 0. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स. -3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. और नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट 3 is present in each value. So dividing
बाई -3। फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव साइन को भी कॉमन ले लें। We are left with x square minus x minus 6 is equal to 0. Now students, making factors of 6, these factors are -3 and 2, and we write this equation as x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. पेयरिंग करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स की और फिर नेक्स्ट टू टर्म्स की। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा और नेक्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा। एंड नाउ x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अगेन टेकिंग x minus 3 common, we are left with x minus 3 into x plus 2 is equal to 0, and either x minus 3 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. So either value of x is 3 or value of x is minus 2. So we have solved this equation and values of x are minus 2 and 3. Now students, see question number 7, evaluate the determinant. Students, हम first time ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम एज इट इज़ इवेल्युएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी रो या कॉलम से इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वर्किंग खासी ज़्यादा हो जाएगी। उससे पहले हम किसी रो या किसी एक कॉलम के कुछ एंट्रीज़ को ज़ीरो बना लेंगे। जैसे हम फर्स्ट कॉलम को कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज 3, 2 और 4, इन्हें हम कोशिश करेंगे कि हम ज़ीरो बना लें और फिर हम फर्स्ट कॉलम से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें। आप देखिए कि हम पहले तो ये एंट्रीज कैसे ज़ीरो बनाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऑपरेट करेंगे R1 माइनस 3R3, R2 माइनस 2R3 एंड R4 माइनस 4R3। अब स्टूडेंट्स, जब हमने इस तरह से वैल्यू ज़ीरो बनानी हो तो हम फर्स्ट एंट्री को देखेंगे। ये फर्स्ट एंट्री है 3 और ये फर्स्ट एंट्री है 1। तो हमने R3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने R1 में से माइनस कर दिया। देखिए 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1 विल बी 3, सो 3 माइनस 3 इज़ 0। ठीक है, फिर 4 माइनस 3 टाइम्स 2, माइनस 3 टाइम्स 2 इज़ माइनस 6 एंड 4 माइनस 6 इज़ माइनस 2, 4 माइनस 6 इज़ माइनस 2। नेक्स्ट देखें, 2 माइनस 3 टाइम्स minus 3, 3 times minus 3 will be minus 9 and 2 minus minus 9, minus into minus plus हो जाएगा and 2 plus 9 is 11. And next 7 minus 3 times 5, minus 3 times 5 is minus 15 and 7 minus 15 is minus 8. ये हमने फर्स्ट रो को सॉल्व किया। सेकंड रो के लिए हमने करना है R2 माइनस 2R3। R2 इज़ 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इज़ 0, 5 माइनस 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 and 5 माइनस 4 इज़ 1, 0 माइनस 2 टाइम्स माइनस 3, 2 times minus 3 is minus 6 and 0 minus into minus 6, minus into minus 6 plus हो जाएंगे, 0 plus 6 is 6, 3 minus 2 times 5, 2 times 5 is 10, 3 minus 10 is minus 7। ये हमारे पास सेकेंड रो है, 0 1 6 minus 7 after this operation। थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी स्टूडेंट्स, और फोर्थ रो को भी आप R4 माइनस 4R3 से सॉल्व करेंगे तो इट बिकम 0 माइनस 7 10 माइनस 14।
इन सब ऑपरेशन को स्टूडेंट्स आप साइड पे वर्किंग में लिख के कीजिएगा ताकि मिस्टेक का चांस ना हो। अब हमने C1 से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और C1 से स्टूडेंट्स हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। C1 की फर्स्ट एंट्री लेंगे 0 और साथ उसके 0 की रो और कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो हम लिखेंगे। अब देखेंगे जो ये ज़ीरोज़ जो हमने बनाए हैं इसका क्या फ़ायदा होगा। मैंने एक एंट्री को आपके लिए सॉल्व किया है ताकि हमें पता चले कि ज़ीरो बनाने का फ़ायदा क्या होता है। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर, फर्स्ट एंट्री 0 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर। और कोफैक्टर हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, -1 रेज़ टू पावर 0 का ऑर्डर, 0 के जो स्क्रिप्ट्स बनते हैं 0 का ऑर्डर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमने फर्स्ट रो का 1 और फर्स्ट कॉलम का 1 यहाँ पे लिख लिए। 1 + 1 -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 और फिर हमने 0 की रो और कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट आया वो लिख लिया। देखिए 0 की रो और कॉलम को डिलीट कर दें और डिटर्मिनेंट क्या है 1 6 - 7, 1 6 - 7, 2 - 3 5, ये देखिए 2 - 3 5 एंड -7 10 - 14, -7 10 - 14 का इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका हमें फिर ये फ़ायदा होगा कि हमें इन ज़ीरोज़ को इनके डिटर्मिनेंट के साथ हमें वर्किंग करके मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा बल्कि हम डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। जैसे कि देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा फर्स्ट टर्म 0 लिख ली, साथ इसका वैसे तो डिटर्मिनेंट आना है लेकिन क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा इसलिए हमने नहीं लिखा। फिर नेक्स्ट टर्म भी 0 लिख ली प्लस थर्ड टर्म है 1, 1 को हम इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में हम देखते हैं। देखिए 1 का ऑर्डर है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 का ऑर्डर है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हमने यहाँ पे लिखा -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की वजह से यहाँ पे आया 3 + 1, ठीक हो गया। और उसके बाद स्टूडेंट्स 1 की रो और कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बचे वो लिखेंगे। 1 की रो और कॉलम को डिलीट करके डिटर्मिनेंट बच रहा है हमारे पास -2 11 - 8, 1 6 - 7, -7 10 - 14, ये डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। एंड देन प्लस लास्ट एंट्री फिर 0 है, 0 के साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। हमने इसलिए ज़ीरोज़ बनाए थे स्टूडेंट्स कि आपने देखा इस स्टेप में हमारा काम कितना शॉर्ट हो गया। सो नाउ अब हमारे पास बचा ये ज़ीरोज़ तो ख़त्म हो जाएंगे और 1 × -1 रेज़ टू पावर 4 दैट इज़ +1 और ये डिटर्मिनेंट हम एज इट इज़ लिख लेंगे। एंड नाउ एक्सपेंडिंग बाय C1, फर्स्ट कॉलम से स्टूडेंट्स हम एक्सपेंड करने लगे हैं इसको -2 और फिर -2 की रो और कॉलम को डिलीट कर दें और जो डिटर्मिनेंट बचे वो लिख लें 6 - 7 10 - 14। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी आप R1 या C1 से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं, सेकंड के साथ नेगेटिव और थर्ड के साथ फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो हम अगर प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 के साथ ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट पॉजिटिव लिखते हैं, सेकंड नेगेटिव, ये माइनस लिखा हमने, आप इसे कह सकते हैं कि ये फॉर्मूले का माइनस है, -1 और फिर 1 की रो और कॉलम को डिलीट कर दें। वी आर लेफ्ट विद 11 - 8 10 - 14 एंड
नेक्स्ट फिर थर्ड एंट्री हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन क्योंकि एंट्री का अपना साइन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। -7 इंटू 7 की रो और कॉलम को डिलीट करें और डिटर्मिनेंट है हमारे पास 11 -8 6 -7। और अब स्टूडेंट्स इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 एज इट इज़, 6 इंटू -14 इज़ -84 एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स आना चाहिए माइनस, लेकिन ये क्योंकि 7 के साथ भी माइनस है, 10 7s ज़ार 70 और फिर -70 होगा और एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 70 हो जाएगा। नेक्स्ट -1, 11 इंटू -14 इज़ -154, 10 इंटू -8 इज़ -80 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 80। -7, 11 -7 इज़ -77, -6 इंटू -8 इज़ -48 एंड इट बिकम्स +48। इसे फर्दर स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट 28 + 74 + 203 दैट इज़ 305। Now students, question number 8. Show that determinant of x111, 1x11, 11x1, 111x is equal to x plus 3 into x minus 1 cube. Let us see the solution. We take left hand side और students हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए C1 + C2 + C3 + C4 करने लगे हैं। मीन्स फर्स्ट कॉलम में हम बाकी के तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे। तो व्हाट डू वी गेट? x + 1 + 1 + 1 इट बिकम्स x + 3। सेकेंड एंट्री देखें, 1 + x + 1 + 1 एंड इट बिकम्स x + 3। नेक्स्ट एंट्री देखें, 1 + 1 + x + 1 it becomes x plus 3 and last term also becomes x plus 3. So students, now you can see that all the entries of first column are same, so we can take this value common and we are left with x plus 3 into 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। आप देखिए जिस तरह पिछले क्वेश्चन में ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट था, ये भी ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट है। ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट को हम एज इट इज़ एक्सपेंड नहीं करते, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि किसी एक रो या कॉलम की एक एंट्री के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ को ज़ीरो बना लें, और वही मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। R2 - R1, जब हम R2 - R1 करेंगे तो आप देखिए 1 - 1 विल बी 0। इसी तरह R3 - R1 करेंगे तो 1 - 1 इज़ 0 एंड R4 - R1 करेंगे तो R4 की भी फर्स्ट एंट्री 0 हो जाएगी। बाकी एंट्रीज़ में भी चेंज आएगा, आइए हम देखते हैं। x + 3 एज इट इज़, ये जो हमने सब्ट्रैक्शंस लिखी हैं इनके करने के बाद हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है 1 1 1 1 0 x - 1 0 0 0 0 x - 1 0 0 0 0 x - 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस डिटर्मिनेंट को देखें, ये डिटर्मिनेंट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अगर एंट्रीज़ इस तरह से हों कि डायगोनल एंट्रीज़ के नीचे तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हों तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसको हम उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ triangular matrix, value of this determinant will be product of the entries of main diagonal, product of the entries of main diagonal। आपने जो मेन डायगनल में एंट्रीज हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 x - 1 इंटू x - 1 इंटू x - 1, दिस इज़ वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो उसको इवेल्युएट करने के लिए आप सिंपल मेन डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद
x+3, ये तो ये बाहर लिखा हुआ था, और उसके बाद 1 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, इट बिकम्स x+3 इंटू एक्स माइनस वन क्यूब, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड determinant of A into A transpose and determinant of A transpose into A, where matrix A is 3 2 minus 1 2 1 3। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए पहले हम ट्रांसपोज की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। If we interchange rows and columns of a matrix, we obtain transpose of that matrix. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A है 3 2 minus 1 2 1 3, इसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की ये नोटेशन होती है, A के साथ हम ये T लिख लेते हैं एंड वी रेड इट एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। और अब यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट रो लें और इसको फर्स्ट कॉलम के तौर पे लिख लें। 3 2 minus 1, 3 2 minus 1 कॉलम बन गया, फिर सेकेंड रो है 2 1 3 और सेकेंड कॉलम बन गया 2 1 3। सो वी हैव ऑब्टेन ट्रांसपोज ऑफ A। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है A ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स मैट्रिसेस की प्रोडक्ट से पहले हम उसको कन्फर्मेबल ज़रूर चेक करते हैं, whether the product of given matrices is possible or not. What is the rule for checking this? The rule is two matrices A and B are said to be conformable for the product AB if the number of columns of A is equal to number of rows of B। ठीक है, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है इफ़ ए के कॉलम्स की तादाद बी की रोज़ की तादाद के इक्वल हो। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। ए ट्रांसपोज लिखा हमने। स्टूडेंट्स ए के कॉलम की तादाद देखिए कितनी है, C1 C2 C3 मीन्स 3 कॉलम्स हैं, और ए ट्रांसपोज की रोज़ R1 R2 R3। So number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix and this product is possible। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता है स्टूडेंट्स। हम यहाँ से फर्स्ट रो की एंट्रीज़ को फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। इट बिकम्स 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1। फिर सेकेंड रो लें और फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 3 इज़ 6, 1 इंटू 2 इज़ 2 एंड प्लस 3 इंटू -1 इज़ -3। इसी तरह से दोबारा फर्स्ट रो को लें और सेकेंड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस -1 इंटू 3 इज़ -3 एंड सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9। नाउ दिस matrix becomes 14 5 5 14 and now we evaluate its determinant. Determinant of A transpose is equal to determinant of 14 5 5 14 is equal to मेन डायगोनल के एंट्रीज का प्रोडक्ट 14 इंटू 14 196 माइनस सेकेंड डायगोनल के एंट्रीज का प्रोडक्ट 5 इंटू 5 25 एंड आंसर इज 171। Now students, we find A transpose into A और मल्टीप्लाई करने से पहले हम फिर चेक करेंगे कि whether this product is possible or not। फर्स्ट मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज के कॉलम काउंट करें, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और सेकेंड मैट्रिक्स है A की रोज काउंट करें R1 एंड R2। सो
फर्स्ट के कॉलम्स की तादाद इज़ इक्वल टू सेकंड की रोज की तादाद के, सो दिस प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को जी। आपने उसी तरह से प्रोसीड करना है। फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स का और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। इसी तरह से फिर सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड वी गेट 13, 8, 3, 8, 5, 1, 3, 1, 10। ये हमारे पास इनकी प्रोडक्ट का मैट्रिक्स आ गया। नाउ वी एवेल्यूएट इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है 13, 8 एंड 3 से। 13 लिखेंगे, साथ इसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो लिखेंगे 5, 1, 1, 10 -8 और फिर 8 की रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचे वो लिख लें 8, 1, 3, 10। 8, 1, 3, 10 का डिटर्मिनेंट प्लस 3 की रोज और कॉलम को डिलीट कर दें एंड वी आर लेफ्ट विद 8, 5, 3, 1। 3 into 8, 5, 3, 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 13, 5 10s are 50 minus 1 1s are 1 minus 8, 8 10s are 80 minus 3 1s are 3 plus 3 and 8 1s are 8 minus 3 5s are 15। नेक्स्ट देखिए 13 into 49, 8 into 77 plus 3 into minus 7 and we are left with 637 minus 616 minus 21 and this is equal to 0. So determinant of A transpose into A is equal to 0. This completes the question. Next is question number 10. If A is a square matrix of order 3, then show that determinant of k into A is equal to k cube into determinant of A, where k is a scalar. Solution देखते हैं स्टूडेंट्स। We consider this matrix A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब स्टूडेंट्स हम बोथ साइड्स को k से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स के ए। और स्टूडेंट जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स की हर एंट्री को उस स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे के से मल्टीप्लाई किया है तो इस मैट्रिक्स ए की हर एंट्री को आपने के से मल्टीप्लाई करना है। के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। ये स्टूडेंट्स हमने दोनों साइड्स को के से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स हमने के को कॉमन लेना है तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में से हम एक ही दफ़ा हम पूरे डिटर्मिनेंट से हम के कॉमन नहीं ले सकते, बल्कि हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करनी पड़ेगी कि हम पहले फर्स्ट कॉलम से के कॉमन लेंगे, फिर हम सेकंड कॉलम से के कॉमन लेंगे और फिर हम थर्ड कॉलम से के कॉमन लेंगे। जैसे मैंने कहा कि कॉलम्स में से कॉमन लेंगे, इसी तरह आप रोज में से भी कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट रो से के कॉमन ले लें, सेकंड रो से के कॉमन ले लें या एंड थर्ड रो से के कॉमन ले लें एंड इट बिकम्स k into k एंड डिटर्मिनेंट बचेगा आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 विच इज़ इक्वल टू k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जब हमने मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया था तो हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर लिया था
मैट्रिक्स की। लेकिन जब हमने कॉमन लिया और कॉमन हमने डिटर्मिनेंट से लिया था तो फिर हमें हर रो या हर कॉलम से के कॉमन लेना पड़ा। मींस ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में फ़र्क है कि आपने मल्टीप्लाई करना है या कॉमन लेना है मैट्रिक्स में से, तो हम पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई या कॉमन लेना हो तो उसकी हर रो या हर कॉलम को आपने ऑपरेट करना होता है। So we have proved the result, that is determinant of Ka is equal to K cube into determinant of A. Question number 11 देखिए. Find the value of lambda if A is singular, where matrix A is 4 lambda 3 7 3 6 2 3 1. Now students, what is a singular matrix? A square matrix A is called singular if determinant of this matrix is equal to 0. Means determinant of A अगर 0 हो जाए तो फिर हम कहेंगे A is a singular matrix. आइए इस डेफिनेशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. और ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे गिवन है आपको A इज सिंगुलर मैट्रिक्स. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0. इसमें हम A की वैल्यू पुट कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ दीज वैल्यूज इज 0. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिंग बाय R1. R1 से एक्सपेंड करें. 4 फर्स्ट एंट्री R1 की, इसको इसके रो और कॉलम डिलीट कर दें एंड वी आर लेफ्ट विद द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 6 3 1 माइनस लेमडा इनटू लेमडा की रो और कॉलम डिलीट कर दें 7 6 2 1 प्लस 3 और 3 की रो और कॉलम को डिलीट कर दें 7 3 2 3. और स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड के लिए नेगेटिव साइन लिखा हमने एंड थर्ड अगेन पॉजिटिव. मैंने आपको पहले भी बताया था कि R1 या C1 से एक्सपेंड करें तो हमेशा फर्स्ट साइन पॉजिटिव लिखते हैं, सेकंड नेगेटिव लिखते हैं और थर्ड पॉजिटिव लिखते हैं. मींस ऑल्टरनेट साइन, और हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 4 इंटू 3 1 ज़र 3 माइनस 3 6 ज़र 18 माइनस लेमडा इंटू 7 इंटू 1 is 7 minus 6 into 2 is 12 plus 3 7 into 3 is 21 minus 2 into 3 is 6 is equal to 0. सिंप्लीफाई करते जाएं. 4 इंटू माइनस 15 माइनस लेमडा इंटू माइनस 5 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट देखते हैं. 4 into minus 15 is minus 60, minus lambda into minus 5 is plus 5 lambda, plus 45 is equal to 0. 5 lambda minus 15 is equal to 0, 5 lambda is equal to 15 and lambda is equal to 3. So we have calculated value of lambda where matrix A is a singular matrix. Now students, there is some home assignment for you. Question number 6, second and third part. Question number 7, second and third part. Question number 11, second part. Please solve all these parts and students revise all the questions which we have done in this lecture, because practice is very important in mathematics. Thank you very much students. I hope you have understood all the questions of this lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.